हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ भुवन अवस्थी प्रेजेंट हैं और भुवन इज़ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट एड्रॉइट मार्केट रिसर्च एंड ऑल्सो वर्किंग एज अ एमएल इंजीनियर एट नाइलेट। तो आज हम भुवन से जानेंगे कि उन्होंने एमएल में कैसे इंटरेस्ट गेन किया और साथ ही साथ एमएल में कैसे उन्होंने जॉब्स क्रैक किया। ये सारी बातें एक एक करके हम भुवन से जानेंगे। तो भुवन, आप पहले अपने बारे में बताइए। Thank you, Chirag, for having me in this platform. So, guys, my name is Bhuvan Avasti. I'm currently in final year of my BTech, Computer Science and Engineering at Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. So, the technologies which I have worked on include blockchain development, machine learning, Python programming, and a complete, MERN stack, etc. Web2 development too. So this was my technology stack, and currently I'm working as a software developer at Adroit Market Research and ML engineer at National Institute of Electronics and Information Technology. सो भुवन, जैसा आपने बताया कि आपने ब्लॉकचेन सीखा है, तो ब्लॉकचेन में आपका क्या कैसे इंटरेस्ट आया और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं? Okay, so blockchain में interest मेरा around second year से start हुआ था when I was into crypto trading and working with a lot of cryptocurrencies and trading with them, also using various decentralized applications shortly called as DApps. So this was the start of my blockchain development learning journey. And then I wanted to deep dive into the back end of the blockchain, understand the basics and the complete working of it. So then I started learning about the blockchain development, and in around third year I commenced my journey here with the help of various YouTube channels including Code Eater, etc. And in this way my journey started in blockchain development. ओके, तो जैसा आपने बताया कि आपने ब्लॉकचेन सीखा डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, तो कौन कौन सी स्किल्स नीड होती हैं जब हम ब्लॉकचेन सीख रहे होते हो? तो कौन सी लैंग्वेजेस सीखते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखते हैं और कौन कौन सी यूट्यूब चैनल की आपने हेल्प ली थी, इसके बारे में एक बार डिटेल में बताइए। सो अगर आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, सो द बेसिक नीड इज़ कि सबसे पहले यू मास्टर योर MERN, क्योंकि वो आपका वेब 2 का बेस बनाएगा। एंड इन दिस वे फिर आप कोई नई टेक्नोलॉजी स्टैक सीखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन गो फॉर सॉलिडिटी आर यूज होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। देन व्हेन यू हैव लर्न दिस टू, then you are open to multiple options which lie in the blockchain domain. First is the blockchain developer, blockchain core developer it is called, so in which you develop a whole blockchain from scratch and everything. Then we have blockchain DApp developer, basically blockchain decentralized application developers. So it requires a combination of MERN and smart contracts, etc. and backend में blockchain Ganache, you learn Ethereum, etc. Then we have smart contract developer. So smart contract developers are basically developers who master at developing a smart contracts, industrial level based contracts which like commercial contracts, smart contract which run on various platform like MetaMask, etc. Then you have smart contract auditors. Smart contract auditors are basically the ones who audit the smart contracts, and they are also paid a handsome salary in the industry of blockchain development. So I chose blockchain DApp developer, and in this way first I learned MERN, and then I went for Solidity, learned various Solidity frameworks like we have Truffle, Hardhat, mastered Ganache, and then I went on learning the basics of the blockchain, which what happens at the back end, like ट्रांजैक्शंस होते हैं, रेगुलरली ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं, सो वो अनट्रेसेबल होते हैं। सो डिटेक्टिंग दो ट्रांजैक्शन, हाउ इन बैक एंड हाउ हैशिंग इज़ वर्किंग एंड एवरीथिंग, कैसे डिफरेंट ब्रिजेस जो डिफरेंट ब्लॉकचेन के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो सब चीज़ें पढ़ना, लर्न करना। इस तरीके से मैंने स्टार्ट की थी अपनी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की लर्निंग की जर्नी साथ में। तो जैसा आपने बताया कि आपने ब्लॉकचेन की जर्नी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखी और फिर उसके बाद आपने स्टार्ट की जर्नी। तो जैसा कोई फ्रेशर स्टार्ट करना चाहता है और ये सारी टेक्नोलॉजी सीख रहा है, उस पे काम कर रहा है, तो जब उसे इंटर्नशिप चाहिए होता है, तो कैसे वो अपने आप को समझे कि मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि अब मैं इंटर्नशिप के सर्च में जा सकता हूँ? तो इसके बारे में एक बार बताइए। So previously I missed a question on what YouTube channel you should refer for the blockchain development. I would say there is Code Eater. He's a brilliant guy and उन्होंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के ऊपर, सो मैंने भी उसी कोर्स से पढ़ा था। एंड देन वी हैव पैट्रिक कोलिन्स,
उनके काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मतलब जिन्होंने 30 आवर्स में वन पूरे क्रैश कोर्स में उन्होंने सॉलिडिटी डेवलपमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट पढ़ाई हुई है। देन वी हैव दलाउत हुसैन, देयर इज़ दिस गाय, उन्होंने बहुत ही इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं पूरे ब्लॉकचेन डेवलपर, ब्लॉकचेन डी ऐप डेवलपमेंट पे बहुत से उन्होंने नेक्स्ट जेएस का यूज़ करके भी बनाए हुए हैं। सो आप वो रिफ़र कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट कि कब आप खुद को समझें एज अ कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं इंटर्नशिप्स और इंडस्ट्री में घुसने के लिए। सो आई वुड से कि व्हेन यू हैव लर्न थ्रू इंटरमीडिएट, कि आपने बिगिनर से स्टार्ट किया, इंटरमीडिएट पे आप पहुंच गए, एंड देयर आर वेरियस चैलेंजेस ऑल्सो अवेलेबल, लाइक यू हैव अ सॉलिडिटी 30-day चैलेंज ऑन कोड डैम, उस पर आप कर सकते हैं एंड आपको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देन कंसीडर योर सेल्फ रेडी फॉर अपेयरिंग एट इंटर्नशिप इंटरव्यूज़ एक्सेट्रा। आप अप्लाई करते रहिए, स्टार्टिंग से ही अप्लाई कर दीजिएगा। व्हेन यू हैव लर्न द बेसिक, स्टार्ट अप्लाइंग, बिकॉज भले ही आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बट वो जो एक्सपीरियंस काम आता है, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल इन अंडरस्टैंडिंग एट वॉट टेक स्टैक्स यू आर लैकिंग। तो वो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहा। आई गॉट रिजेक्टेड एट मैनी firms initially, and then after 3 to 4 rejection I was able to crack one interview into the Immune Bytes, where I was working as a blockchain developer. Okay. Yeah. तो सबको समझ में आ गया होगा जो भी ऑडियंस हैं कि कैसे इंटर्नशिप क्रैक करना है और जब क्या लेवल होता है कि हम इंटर्नशिप के सर्च में जा सकते हैं। तो भुवन, ये बताओ कि तुम्हारा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब तुमने कैसे इंटर्नशिप क्रैक किया और तुमने फिर कैसे अप्लाई किया था, उसके बारे में। ओके, सो व्हेन आई हैड लर्न द बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। सो आई अप्लाई थ्रू इंटर्नशाला, लिंक्डइन एक्सेट्रा, एंड आई वॉज सेलेक्टेड थ्रू इंटर्नशाला। इट वॉज इन अ स्टार्टअप called named as Immune Bytes. It was a Delhi-based startup and it was a smart contract auditing company. ओके, सो उसके 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे इनिशियली, ऑनलाइन थे वो, एंड द थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू वाज ऑफलाइन इन दिल्ली, जो कि उनका ऑफिस था वहाँ पे ही। सो एक्सपीरियंस, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड वेन एवर इट वॉज लाइक अ मोर showing myself where I was lacking, because there was though I had mastered a lot of stuff, but there were many tech stack in which I was lacking, many areas were there, but luckily the majority part which I had learned proved fruitful and I got selected into it. So इस तरीके का मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर एट इम्यून बाइट्स। ओके, तो क्या क्या दिक्कतें फेस हुई जब तुम इंटर्नशिप के लिए गए दिल्ली इम्यून बाइट्स में? तो क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी, इसके बारे में बताओ। जैसे कि कुछ बच्चे जो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने में दिक्कतें हुई, या फिर जब तुम पहली बार इंटर्नशिप के लिए गए तो क्या क्या सीखना पड़ा तुम्हें एक्स्ट्रा, और क्या क्या दिक्कतें और फेस हो रही थी, इसके बारे में डिटेल में बताओ। So my internship journey started around June 2023, last year. So जो initially problem होती है, I would classify them into 2 categories: work related problem and non work related problem. Non work related problem include your accommodation, your traveling etc, and कि आपको खाने वगैरह की जो दिक्कत हो रही है। So I would say तो Tier 1 cities में problem होती है, mainly is of managing the expenses. मुझे भी हुई, सबको होती है। सो इतना ही हो पा रहा था कि एक्सपेंसेस मैनेज हो जा रहे थे। इट वाज अ बिट कि आपको थोड़ा बाहर का कम करना पड़ता है, क्योंकि आप नई जगह पे हैं। यू कांट टेक समथिंग सीरियस विद योर हेल्थ, कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं बाहर के खाने से। तो वो सब चीज़ें नॉन वर्क रिलेटेड में आ जाती हैं। द सेकेंड वॉज वर्क रिलेटेड। सो सबसे पहली चीज़ जो थी कि एक रूटीन बनता है आपका, कि आपको मॉर्निंग पर्सन बनना पड़ता है। कॉलेज में हम सब लोग नाइट आउल होते हैं, रात को काम करने के पढ़ने की आदत है, बट देन वी हैव टू टेक अप अ रूटीन। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रूटीन बनता है कि आपको सुबह डेली वर्क पे जाना है। एंड देन सेकंड थिंग इज़ कि जो वर्क रिलेटेड में प्रॉब्लम आई वॉज कि आई वॉज वर्किंग एट अ स्टार्टअप। सो वर्किंग एट अ स्टार्टअप मेड मी रियलाइज दैट at how many places I was lacking. Like you have to work as a debugger, you have to work as a tester and as a developer, all 3 roles at the same time for a particular project on which is assigned to you. So आपको चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती हैं, आपको इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स खुद बनाने पड़ते हैं, एंड मेकिंग श्योर कि उसमें कोई भी सिक्योरिटी एरर ना रह जाए। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टू ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ये इशू था कि उसका डेली उसमें नई अपडेट्स आती रहती हैं टेक्नोलॉजी में।
सो प्रॉब्लम इस तरीके की है कि आपको इतनी जल्दी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है, सो यू हैव टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन, अंडरस्टैंड द वर्किंग। सो डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी लाइट पेपर्स, वाइट पेपर्स होते हैं वेरियस क्रिप्टो करेंसीज़ के, या नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, कोई नया डी ऐप लॉन्च हो रहा है, सो वो सब के थ्रू आपको जाना पड़ता है। सो ये एक वर्क रिलेटेड इशू था जो क्या था कि लाइक यू हैव टू रीड अ लॉट स्पेसिफिकली इन ब्लॉकचेन एंड टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स। आपको चीज़ें खुद फिगर आउट करनी पड़ती हैं, कहाँ कहाँ पे कहीं प्रॉब्लम में फंस रहे हो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, अंडरस्टैंड कि कहाँ पे लैक कर रहे हो, कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है इसमें, सब चीज़ें आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ती हैं। एंड रिगरसली अपना जो चीज़ें बनाई हैं आपने, कोई स्क्रिप्ट भी बनाई है नॉर्मल, वो भी आपको रिगरसली टेस्ट करनी पड़ती है रेगुलरली कि उसमें कोई फॉल्ट ना हो, बिकॉज एट प्रोडक्शन, एक बार प्रोडक्शन में चली गई देन देयर्स यू नो डेफिनेटली कि प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। सो आपको टेस्टर भी खुद ही बनना पड़ता है। ओके। तो जैसा तुमने बताया कि तुमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, और फिर तो ओवरकम कैसे किया, क्या क्या तुमने स्ट्रेटजीज अप्लाई की इसे ओवरकम करने के लिए, इसके बारे में बताओ। सो स्ट्रैटेजीज़ में बेसिकली मैं बोलूँगा, आप जैसे मैं प्रॉब्लम में फंसता था कि कहीं पे काफ़ी बार बैकएंड में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ब्लॉकचेन में कई बार इंटरैक्शन के दौरान कई बार फेलियर्स आ जाते हैं बिकॉज और आपको रूट सेट करने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ सेट करनी पड़ती हैं। सो इनसे फिगर आउट करने के लिए डेफिनेटली मतलब आपको जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने पढ़ी वहाँ पे उसकी डेप्थ में जाना, बैकएंड पे ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन कैसे रीड करती है डेटा को, वो कैसे हैश कर रही है, ये सब चीज़ें फिगर आउट करना, और उसकी एल्गोरिदम आपके बनाए हुए प्रोडक्ट, आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सब चीज़ें फिगर आउट करना। सो यस, इस तरीके चीज़ें फिगर आउट करी थी, मेनली रिगरसली चेक करना चीज़ों को कैसे वर्क कर रही हैं, एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, मतलब डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिखना, कौन सी बेस्ट फिट बैठे, कौन प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है, छोटे पोस्टमैन वगैरह यूज़ करना फॉर एपीआई सर्विसेज, इस तरीके से चीज़ें फिगर आउट की थी। तो दैट मीन्स कि हार्डवर्क के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अपना पूरा हमें हार्डवर्क करते रहना है और सारे पेपर्स जो नए नए आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशंस, Yes. उन्हें पढ़ते रहना है। ब्लॉकचेन में ये इशू है हाँ। कि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है टेक स्टैक के साथ रेगुलरली। तो अब बात करते हैं कि तुमने जैसा बताया कि तुम फिर एमएल पे स्विच किए थे, तो अपने एमएल जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे तुम्हें इंटरेस्ट आया एमएल में और पाइथन प्रोग्रामिंग में, और साथ ही साथ फिर तुमने स्विच क्यों किया, इसके बारे में बताओ। सो मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पहले तो ब्लॉकचेन में काफ़ी अच्छा रहा था। देन आई मेट रियली ग्रेट गाइज देयर, लाइक वो लोग भी फाइनल ईयर में थे बट दे वर आउट परफॉर्मिंग एनी स्टूडेंट हेयर in the field of development etc. Like they have mastered blockchain development and now they were like into ML, data science etc. and also have mastered that too. So फिर वहाँ से मुझे थोड़ा मोटिवेशन आया, काफ़ी मोटिवेशन आया कि लाइक मतलब मुझे और भी चीज़ें सीखनी चाहिए। देन आई एंटर्ड इनटू डेटा साइंस। इनिशियल स्टार्ट मैंने मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह पढ़ के, मतलब जो बेसिक होता है पहले तो उसके बारे में पढ़ा, चीज़ें समझी। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग से मतलब थोड़ी बहुत आती थी, मतलब बेसिक आती थी। फिर मैंने इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँचे पाइथन प्रोग्रामिंग में। देन डेटा प्री प्रोसेसिंग, काफ़ी चीज़ें होती है जो एमएल के एस्पेक्ट्स, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ नीश टारगेट किए जो इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को कमर्शलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे टारगेट किया, उस पर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए, सर्विसेज बनाई और उनको डिफरेंट कंपनीज़ के सामने पिच किया। एंड देन उस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इनटू एमएल। ओके। तो जैसा तुमने बताया कि काफ़ी चीज़ें सीखी तुमने एमएल की जर्नी में, तो जो तुम्हारी एमएल की जर्नी थी, इसे स्टार्ट होने के बाद तुमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, और क्या क्या इसके बाद आउटकम्स आए, और फिर तुमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, इसके बारे में बताओ। सो आउटकम्स में बेसिकली जब एमएल स्टार्ट की थी, सो मैंने पहले बताया कि पाइथन सीखी थी। देन बेसिक्स ऑफ एआई, सुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है उनके बारे में जाना। एंड देन की पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, ये सब फ्रेमवर्क्स पढ़े, उस पर बेस्ड होकर फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। सो इनिशियल प्रोजेक्ट्स तो यूट्यूब से ही देखे थे, जैसे गोल्ड प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, मतलब यूट्यूब पर, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो मेरी बेसिकली मैंने बेसिक्स पढ़ के डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पे उतर गया था। मेरी जर्नी थोड़ी अलग थी एमएल में,
मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट से ही पिच करना मतलब स्टार्ट करा था अपना। एंड देन ऐसे आगे बढ़ते गए तो फिर कुछ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स उठाने का सोचा कि हम नीश टारगेट करिए एक जिसको मैं लाइक एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ने का सोचा बेसिकली। तो एक नीश टारगेट करी, उस पे बेस्ड होकर एक सोल्यूशन बनाया। एंड फिर जब उसके सोल्यूशन बनाने में मुझे 3 महीने के अप्रॉक्स लग गया था। एंड उसको सीखते सीखते भी मैं काफ़ी चीज़ें सीखता रहा रेगुलरली, जैसे पाइनस्टॉलर होता है, काफ़ी लाइब्रेरीज यूज़ होते हैं पाइथन में, क्योंकि पाइथन लाइब्रेरीज़ का भंडार है, उसमें हर चीज़ की लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो वो सब लाइब्रेरीज़ को कैसे यूज़ करना है, परफेक्ट एमएल मॉडल्स क्या बनाने हैं, जो ऑलरेडी एमएल मॉडल्स एग्जिस्टिंग है मार्केट में। फॉर एग्जांपल बेस मॉडल्स ओपन एआई के एंड परप्लेक्सिटी के भी बेस मॉडल्स हैं, मिस्ट्रल करके भी हैं काफ़ी, ये बेस मॉडल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जिनको एलएलएम्स कहते हैं। तो इनके बारे में जाना, पढ़ा, उनसे उनका मोस्ट हम लोग कैसे ले सकते हैं क्वांटाइज करके, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें पढ़ के मैंने इस तरीके से अपना स्टार्ट किया था, प्रोसेस बाय प्रोसेस। ओके। तो अगर कोई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है और ML AI का जर्नी शुरू करना चाहता है, तो उसे क्या गाइडेंस दोगी कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए सीखने का, इसके बारे में बताओ। ओके, सो सीक्वेंस सीखने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मेरी जर्नी जो रही, मैंने सबसे पहले बेसिक सीखे, उसके बाद जैसे ही मैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बना रहा था, जिससे मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि मैंने एक कंपनी को सेल किया था एज अ सर्विस फॉर सम अमाउंट। एंड वही एड्रॉइड मार्केट रिसर्च ही थी कंपनी। सो दैट वाज द रीज़न दैट दे हायर्ड मी फॉर अनदर प्रोजेक्ट विच दे वांटेड टू बिल्ड। एंड सो वो उस पर मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर उन्होंने मुझे हायर किया, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट पे। सो इन दिस वे आई गॉट हायर्ड। सो ऐसे चांसेस आपके भी रहेंगे कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप टारगेट करना चाहते हैं या फिर कोई एक इनटू जॉब चले जाना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर तक वेब डेव कर लीजिए, DSA एंड वेब डेवलपमेंट, क्योंकि फिर आपके पास एक बेस हो गया जिससे आपको कॉलेज प्लेसमेंट मिल जाती है। DSA एंड वेब डेव आती रहता है कॉलेज प्लेसमेंट में। देन टारगेट कि आपका फ्यूचर स्कोप क्या है, कौन सी जॉब डिमांड है। इस समय जैसे ML की डिमांड है, ML के बारे में पढ़िए, पहले बेसिक्स पढ़िए, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में जानिए, क्योंकि वो एक क्रूशियल स्टेप्स होता है जहाँ हम लोग काफ़ी मिस कर जाते हैं बच्चे। डेटा प्री प्रोसेसिंग, चार्ट्स बनाना, उस तरीके से पढ़िए। एक पूरा मैं कहूँगा कि डेटा साइंस को डेटा साइंस की तरह लीजिए, क्योंकि डेटा साइंस में भी फिर से काफ़ी फील्ड बदल जाती हैं अलग अलग। ML इंजीनियर अलग है, डेटा इंजीनियर अलग है, डेटा साइंटिस्ट अलग है। तो आप तीनों में से किस में बेस्ट फिट बैठ रहे हैं वो निकालिए। डेटा इंजीनियर का काम बेसिकली वेब स्क्रैपिंग होता है, मतलब डेटा स्क्रैप करके देना, जिस पे ML इंजीनियर वर्क करता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपका बेस्ट फिट कौन सा बैठ रहा है कि आप ML इंजीनियर जाना चाहते हैं, तो आप डेटा प्री प्रोसेसिंग आपको कितनी करनी है। एक डेटा को समझने का तरीका होता है कि डेटा क्या कहना चाह रहा है, कि आपको ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, आपको कोरिलेशन निकालना पड़ता है काफ़ी चीज़ों के बीच में। तो उस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर CNN काफ़ी मॉडल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो उस तरीके से आप बढ़िए आगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कहूँगा पाइथन पढ़िए, डेटा प्री प्रोसेस बेसिक्स ऑफ AI पढ़िए, डेटा प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट करिए। फिर ML में जाइए, ML मॉडल्स के बारे में सीखिए, सुपरवाइज अनसुपरवाइज जितने भी तरीके के होते हैं। देन फिर डेटा को विजुअलाइज़ कैसे करना है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, इन सब चीज़ों में आगे बढ़िए। उसके बाद डिप्लॉयमेंट आता है ML मॉडल का। डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा टफ होता है कई बार, क्योंकि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी सीखनी पड़ती है। उसके लिए AWS सीखना पड़ेगा, गूगल फायरबेस वर्चुअल मशीन पे वर्क करना पड़ेगा, वो सब सीखिए और उस तरीके से आप अपनी जर्नी प्रोसीड करिए। बट मेरा मानना है कि अगर सिंस आप टायर 3 अगर कॉलेज से हैं, तो सेकेंड ईयर तक एक वेब डेवलपमेंट और DSA कर लीजिए, ताकि अभी कॉलेज प्लेसमेंट एटलीस्ट फिक्स हो जाए। देन यू स्टार्ट लर्निंग कि कौन सा आपके ऊपर फिट बैठ रहा है। जनरेटिव AI भी आप पढ़ सकते हैं। तो भुवन, मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स या फिर जूनियर्स देख रहे होंगे उनके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। तो अब पहले प्रीवियसली आपने बताया था कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था, एक सॉफ्टवेयर बनाया था और उसे आपने सेल किया था एक कंपनी को। तो उसके बारे में एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करो कि कैसे वो प्रोसेस आपने किया और क्या क्या इन चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी, उसके बारे में बताओ। सो बेसिकली जब मैंने मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मतलब जब इंटरमीडिएट लेवल पे जब मैं पहुंच गया था, सो आई सॉ मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स विच वर एट IIT एंड NIT, सो दे वर डेफिनेटली डूइंग देयर ओन स्टार्टअप एक्सेट्रा। सो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि लेट्स एक टारगेट करते हैं नीश को, लेट्स टारगेट अ नीश। सो अर्लियर आई वाज वर्किंग इन सेकेंड ईयर एज अ कंटेंट एडिटर एट ऑर्बिट्स मार्केट रिसर्च।
सो वहाँ पे मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जो कि थी रिपोर्ट जनरेशन की, मार्केट रिपोर्ट जनरेशन की। सो आई थॉट कि वो एक ऐसा नीश है, जैसे बहुत सी मार्केट रिसर्च कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में। सो सब लोग मार्केट रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, तो वो एक ऐसा नीश है, और सब लोग मैनुअली करते हैं, तो वो एक ऐसा नीश है जो मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो मैंने उससे रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट किया। इट टुक मी 3 मंथ्स कि मैं उस सॉफ्टवेयर को बना पाऊँ प्रॉपरली, एंड देन 3 मंथ्स लगे। फिर मैंने उसको काफ़ी मार्केट रिसर्च कंपनीज़ को पिच करा, एंड देन वन ऑफ देम रिवर्टेड बैक, एडवाइट मार्केट रिसर्च, एंड दे वर इम्प्रेस्ड बाय द सॉफ्टवेयर। तो काफ़ी उनके कस्टमाइजेशन थे, वो सब इम्प्लीमेंट करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, एंड तो इस तरीके चीज़ें स्टार्ट हुई, एंड इट वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेगोशिएशन जिसके थ्रू मुझे जाना पड़ा। क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि ऑलरेडी टायर 1 टायर 2 की सॉल्यूशन बेस्ड कंपनीज़ हैं मार्केट में, कॉलेज जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म करी हुई है वहाँ के बच्चों ने। सो वाई समवन वुड लाइक टू हायर अ टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट, राइट? एक ये भी माइंडसेट रहता है मार्केट में। सो अपने आप को मतलब उस हिसाब से ट्रेन करना कि आप उनके सवालों को, जो मैनेजरियल पोस्ट पे लोग बैठे जो आपके साथ नेगोशिएशन करना चाहेंगे, उनके साथ 3 मंथ्स के अप्रॉक्स वो नेगोशिएशन चला था, डील्स चली थी, लाइक रेगुलर टेस्टिंग हुई थी जो भी सॉफ्टवेयर बनाया एंड हाउ इज़ इट परफॉर्मिंग उस पर, एंड डेफिनेटली उनका कितना कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है वो मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा था। एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ रेगुलर मीटिंग्स एक्सेट्रा, द डील वॉज फाइनलाइज्ड, एंड NDA वॉज ऑल्सो साइंड। एक NDA भी साइन हुआ था, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसके थ्रू मैं सोर्स कोड नहीं रिवील कर सकता था अपने का किसी भी उनके कॉम्पिटिटर्स को। तो इस तरीके की चीज़ हुई थी, और मैंने जो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करी वो सबसे बड़ी यही थी कि एक नीश टारगेट करना टफ़ होता है, क्योंकि एंड सेकंड है कि आपको अपना बेस बनाना पड़ता है कि आपकी नेटवर्किंग कैसी है। काफ़ी अप्रोच करना पड़ता है, रेगुलर रिजेक्शंस मिलते हैं, लाइक कंपनीज़ रिप्लाई तक नहीं करती हैं, तो वो रेगुलर आपको भेजना पड़ता है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, अपने एलुमिनाई जो होते हैं उनको अप्रोच करना पड़ता है। एंड ये भी डिफरेंस है टायर 1 टायर 3 कॉलेजेस में कि IITs का एलुमिनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलती है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इस तरीके से मेरी फील्ड स्टार्ट हुई थी। मुझे जो लास्ट में प्रॉब्लम फेस हुई वो थी कस्टमाइजेशन में, जैसी उनकी टीम को रिक्वायर्ड था। सेकंड वॉज कि जैसे ही आप इसको सीखेंगे कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब वो प्रोडक्शन लेवल पे जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो बेसिकली वो काफ़ी क्रैश होता है। लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉगल करना पड़ता है आपको बैकएंड पे कि वो इतनी हिट्स, इतनी रिक्वेस्ट हैंडल कर पाए, डिप्लॉयमेंट सही से हुआ हो, कोई भी एक माइनर एरर ना आ रही हो, सर्वर सारे सेट हो, सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई थी वहाँ पे। एंड इस पे मैं रोहित सर हैं, रोहित तिवारी सर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी, ये जो डील्स मतलब नेगोशिएशन वगैरह से लेके सारी चीज़ें गाइड करने में। तो जैसा तुमने बताया कि जो एक कम्युनिटी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि हमें बहुत सारे कनेक्शंस होने चाहिए और वो कनेक्शंस बहुत हेल्प करते हैं, तो यार और साथ ही साथ तुमने बताया कि तुम्हारे प्रोफेसर नेगोशिएशन में हेल्प किया था। तो इसके बारे में एक बार डिटेल में बताओ कि कैसे नेगोशिएशन तुमने किया था, और अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो उसे क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, इसके बारे में बताओ। सो नेगोशिएशन वाज बेसिकली कि पहले तो जब आइडिया पिच हुआ था तो उसके बाद एक डेमो हुआ था विद 2 लोग, मतलब वहाँ उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, जो मैनेजर पोस्ट में होते हैं उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उन्होंने मतलब डेमो करा था। एंड देन जब उनको फिट एंड फाइन लगा तब जो मतलब अपर मेंबर्स थे वो लोग इन हुए, उन्होंने प्रोडक्ट देखा। फिर नेगोशिएशन था कि काफ़ी पॉइंट्स वो लोग रख रहे थे कि आप इस चीज़ के सर्विस के लिए इतना डिमांड कर रहे हैं, बट हम लोग खुद ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करके इसको बनवा सकते हैं, तो और वो हम लोग के लिए इतना कॉस्ट पड़ेगा, वो कंपेरेटिवली कम पड़ेगा। तो इस तरीके से तो वहाँ पे काफ़ी इशू आ रहे थे उनको इम्प्रेस करने में कि येस दिस इज़ द बेस्ट वन। उस हिसाब से मतलब काफ़ी आपको पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं कि क्यों आपकी सर्विस, मगर अगर आप घुसना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप में, आपकी क्यों सर्विस, आपकी दी हुई चीज़, आपका दिया हुआ प्रोडक्ट क्यों आउटस्टैंड करता है, क्यों अलग दिखता है बाकियों से, बाकी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, एंड उसको क्यों कॉपी नहीं करा जा सकता है, किस तरीके की आप एडवांटेजेस उसको प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो चीज़ हेल्प करी थी। एक टाइम पे डील ऐसी आ गई थी कि दे वांटेड टू परचेज द सॉफ्टवेयर फॉर सम अमाउंट,
तो यहाँ पे रोहित तिवारी सर ने मेरी हेल्प की थी। उन्होंने यही बोला था कि स्टिक टू द पॉइंट कि आपको सर्विस सेल करना है, सारा सर्विस सेल करना है उससे। तो मैंने उसी पे मैं एडमेंट रहा था कि आई वांट टू सेल इट एज अ सर्विस। सो वो उसी वजह से शायद मतलब डील फाइनल हो पाई थी कि इट वाज सोल्ड एज अ सर्विस टू देम। एंड अगर किसी स्टूडेंट को इस रास्ते पे आगे बढ़ना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एमएल की फील्ड में रहो। अगर आप वेबडी में भी हो, ब्लॉकचेन में भी हो, कोई ऐसा एक नीश टारगेट करो जिसमें आपका कोई मुकाबला ना कर सके। मैं तो कहूँगा एक ऐसा प्रोडक्ट, एक आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट बनाओ कि कुछ नई चीज़ करो। वेब डेव में ही कुछ ऐसा इंटीग्रेशन करने की कोशिश करो, एमएल को इंटीग्रेट करो वेबडी से। इस तरीके की चीज़ें हैं। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि बेस्ट हो, और उसको फिर पिच करने के लिए आप एलुमिनाई नेटवर्क, जो आपके हर कॉलेज का एक एलुमिनाई नेटवर्क होता है, ठीक है, उसको बनाओ। उसकी प्रॉपर मार्केटिंग का सोचो कि आप कैसे पिच करोगे। अब तो एआई टूल्स है, चैट जीपीटी वगैरह, आप उनका यूज़ कर सकते हो कंटेंट बनाने में, मेल का। इस तरीके से आइडियाज़ पिच करो, प्रॉपर स्लाइड्स बनाओ, और अपना जो नीश है, अपना जो प्रोडक्ट है, उसको पहले खुद अच्छे से समझो कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि होता यह है कि आपकी प्रॉब्लम आपके ग्रुप के 3-4 लोगों के लिए हो सकती है, बट मार्केट के लिए वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यू डोंट नो। उस हिसाब से आपको चीज़ें फिगर आउट करनी चाहिए, एंड इस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, मेरा मानना है। ओके भुवन, तो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जैसे आपने बताया कि हमें इंटीग्रेट करना चाहिए और कुछ ऐसा प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो मार्केट को बेनिफिट दे और उसे ख़रीदने के लिए लोग तैयार हों। तो यार एक क्वेश्चन जो जेन्युइन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे प्रोडक्ट की आइडियाज़ कैसे आते हैं और हमें किस तरह से अपने मतलब इतना इनोवेशन कैसे कोई सोच सकता है, मतलब इसके बारे में बताओ कि ये सब आइडियाज़ बेसिकली हम कैसे सोच सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं, इसके बारे में बताओ। सो एक्चुअली लोग सोचते हैं ऐसे आइडियाज़, नो डाउट, कि बस डिफरेंस ये है कि आप देखेंगे टायर 1 कॉलेजेस के जो हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली वहाँ पे एवरी वन इन 4 इज़ डूइंग अ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है। सो उसका रीज़न है कि आप पहले मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है आपको, कि आपने जिस तरीके से अभी इंटरप्राइज लेवल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉफ्टवेयर्स में प्रॉब्लम आ रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो इंटरप्राइज सोल्यूशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर वो किसी एक छोटी फर्म को बेच रही है कोई बड़ी कंपनी, तो फिर उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है वो छोटी फर्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो जो कस्टमाइजेशन होती है उसके लिए काफ़ी मतलब मेहनत लगती है, काफ़ी चीज़ें लगती हैं। एंड तो क्या उस प्रोसेस को ऑटोमेट करवाया जा सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्मॉल फर्म? तो इस तरीके के छोटे छोटे नीश होते हैं जो कि टारगेट करे जा सकते हैं। तो वन ऑफ द नीश हो गया। तो आप इस तरीके से एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसका केवल सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, उसको टारगेट करो एंड देखो कि वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितना बड़ा उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है। उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ये मेरा मानना है। ओके, तो फाइनली हम लोग इस इंटरव्यू के लास्ट में आ चुके हैं और फाइनली एक क्वेश्चन जो आखिरी में मैं पूछूंगा कि आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं और 5 इयर्स डाउन लाइन आप अपने आप को कहाँ देखते हो, इसके बारे में बताओ। ओके, सो माय फ्यूचर एस्पिरेशंस आर वेरी क्लियर टू मी कि मुझे अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करनी है। एंड उसका फर्स्ट स्टेप तो ये जो सॉफ्टवेयर सेल करा मैंने एज अ सर्विस, उसका मैंने रख दिया था। आफ्टर डैट मैंने 2 वेबडी के क्लाइंट्स फाइनल करे थे, फिनिश करे थे कंप्लीट। उसमें 2 वेबसाइट्स बिल्ड करी थी 2 अलग अलग लोगों की। एंड 3rd डील इज़ ऑन द वे फॉर अ गाय इन नोएडा। सो मैं डाउन द लाइन ये देखता हूँ कि आफ्टर 5 years आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कंपनी विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, a complete wholesome solution to all the software problems, and उस तरीके से उसी पाथ पे आगे बढ़ने का मेरा इंटेंशन है। सो थैंक यू वेरी मच भुवन फॉर गाइडिंग योर जूनियर्स एंड व्यूअर्स, और यहीं पे हम इस इंटरव्यू सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड गाइस, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।